Hello dear student, I am your chemistry diploma teacher Professor Gage Sachin Mohan from Sanjeevani KBP Polytechnic Uppergaon. Welcome all of you in Sanjeevani lecture management system. So in the last class we completed the cement, and in the last class we studied the setching and the hardening of the cement and uses of the cement. In today's class we are going to discuss the lime. So I think everybody know about the lime. Every student see the lime. So the commercial calcium oxide is known as quicklime or common lime, and that lime is obtained by the calcination process. So in the metallurgy of copper pyrite we studied the roasting process. Roasting is a process of heating the copper ore in presence of air. Similarly, calcination is the heating of ore in absence of air. So calcium carbonate, in the sense limestone, when they are subjected for calcination, so here I am showing a reaction, CaCO3, it is called as the limestone. Okay. And when limestone they are subjected for calcination, means heating that ore in absence of air. तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि रोस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड कैल्सिनेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. सो इन कैल्सिनेशन लाइमस्टोन, दिस इज द ओर ऑफ कैल्शियम. ओके, फॉर्मूला CaCO3. सो द लाइमस्टोन, द ओर ऑफ कैल्शियम, whose formula is CaCO3, when they are subjected for calcination, that ore is heated in absence of air. Or either calcination of limestone. If limestone is not available, you can do the calcination of chalk. From chalk you will also get the calcium oxide. Marble, calcination of marble also produces the lime, that is your calcium oxide. Then oyster shell, YSTR, oyster shell, which is found in a sea, marine, which is a good source or a rich source of calcium carbonate. So either the calcination of limestone or chalk, marble or oyster shell, it will produce CaO with a liberation of carbon dioxide. So the formation of CaO, that is called as the calcium oxide, is known as quicklime, or it is also called as the common lime. Limestone is usually associated with, जब भी हमें limestone मिलता है तो उसके साथ हमें सिलिका भी मिलता है. Usually limestone is associated with the silica, alumina, that is Al2O3, silica SiO2, and iron oxide, that is Fe2O3. This constituent is the chief impurities which are associated with the limestone, and is also associated with the magnesium carbonate. इसके अलावा उसके साथ magnesium carbonate भी होता है as an impurity, but they are present in a smaller amount. So उसको हम बोलते हैं लाइम. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम. तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है कि लाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट सीमेंटिंग मटेरियल. जैसे कि हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या फिर अदर कंस्ट्रक्शन में, वैसे ही हम लाइम का इस्तेमाल सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पे हम इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ ए गुड बाइंडिंग मटेरियल. इट बाइंड विथ क्रस्टोन, ब्रिक्स एंड other similar materials, for example tiles. A cementing material may be defined as the material which has a capacity of holding structural unit like your cement together with sufficient strength is called as the cementing material. Among these groups includes lime, then natural cements, gypsum, calcium sulfate,
Portland cement as well as various other synthetic products. All this material is called as the cementing material and which has a capacity to hold the structural unit together with sufficient amount of the strength. Okay. Now here cementing material, the material which has the capacity of holding the structural units, for example bricks, stones, aggregate are called as the cementing materials. For example lime, natural cement, gypsum, Portland cement is nothing but the naturally occurring cementing materials. Lime is an oxide of calcium called as CaO, which is obtained from calcium carbonate by calcination process. Uses: ऑर्डनरी बिल्डिंग, चूँकि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ऑर्डनरी बिल्डिंग, मैसिव मॉन्यूमेंट्स, पैलेसेस, फोर्ट्स, किले, राजवाड़े या फिर ऐसा कोई भी स्टैचू हम लाइफ से बना सकते हैं। बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एज ए रिलायबल एंड इकोनॉमिकल सीमेंटिंग मटेरियल, रिलायबल, हम पूरी तरह से सीमेंट पे जैसे हम भरोसा करते हैं वैसे ही भरोसा हम लाइन पे कर सकते हैं। प्योरली रिलायबल, इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू द सीमेंट, इकोनॉमिकल सीमेंटिंग मटेरियल, और हमें सस्ता भी पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द सीमेंटिंग मटेरियल, दैट इज कॉल्ड द लाइम। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द स्लैकिंग ऑफ लाइम। स्लैकिंग ऑफ लाइम का मतलब होता है सिंपली यू आर गोइंग टू ऐड water into the lime, that is your calcium carbonate. So that process is called as the slacking of lime, or that reaction is called as the hydration reaction. Hydration का मतलब होता है हाइड्रा, हाइड्रा का मतलब होता है पानी, और जब भी हम पानी ऐड करेंगे लाइम में तब उस रिएक्शन को हम बोलेंगे हाइड्रेशन, लाइक योर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। अगर हम सीमेंट में पानी ऐड करते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे चेंजेस होता है, केमिकल चेंजेस होता है, फिजिकल चेंजेस होता है, केमिकल चेंज होता है, लाइक जेल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक मास, क्रिस्टल। वैसे ही हम अगर लाइम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम पानी ऐड करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन या फिर स्लैकिंग ऑफ लाइम। So here in this process of chemical combination of lime, calcium oxide is a lime with a definite quantity of water so that the end product is hydrated oxide. Hydrated in the sense here it is called as the calcium oxide, but when water molecules is attached with calcium oxide, that is the lime, is called as the hydrated oxides. When lime cannot be absorbed, when lime cannot absorb any more water, then the process is said to be completed. Now reaction will continue when this calcium oxide यानी कि lime, when it continuously absorbs the water and water molecule is linked to the lime, then it is called the hydrated. That process is called the hydration. Hydration reaction goes on till it will absorb the water molecule, and when we can say that reaction is completed when that lime is not able to absorb the any more water molecules. Now here the reaction is completed and you will get the formation of the new product which is called as the hydrated lime. So calcium hydroxide is formed as per the following reaction. So here lime react with water and you will get the formation of what? Calcium hydroxide. Now this calcium hydroxide does not have many more ability to absorb the water. Reaction is completed and it will form what? Calcium hydroxide. It is called as the slacking of lime. जब भी हम पानी ऐड करते हैं लाइम में
तब क्या होता है, तो देखिए पहले इवोल्यूशन, जब भी हम लाइम में CaO में वाटर ऐड करेंगे तब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट होती है। सो हीट इज जनरेटेड ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना 227 किलो कैलोरी पर kg ऑफ लाइम। दिस अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द स्लैकिंग ऑफ लाइम और व्हेन water react with the lime or when water combine with the lime. So the first change is evolution of heat, amount of heat is produced. Then expansion, your calcium carbonate or your lime, it will get expand, volume extend up to 2 to 3 times. मान लो कि आपका लाइम इतना है और जब भी मैं वाटर ऐड करूँगा और स्लैक करूँगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि मान लो कि उसके आकार से 2 गुना या फिर 3 गुना आकार उसका बढ़ता है, उसका एक्सपांशन होता है। जब भी स्लैकिंग ऑफ लाइम हम करते हैं तो उसमें एक्सपांशन हमें दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। सो द सेकंड चेंज इज एक्सपांशन, वॉल्यूम दे आर एक्सटेंड अप टू 2 to 3 times than the normal limestone. The next one, development, when लाइम रिएक्ट विद द वाटर, जब भी लाइम रिएक्ट करता है वाटर के साथ, देन इट विल इवॉल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एक्सपांशन ऑफ दैट मटेरियल टेक प्लेस विथ हिजिंग एंड क्रैकिंग साउंड ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द हीट। जब भी वाटर लाइम के साथ रिएक्ट होता है तब भी हीट प्रोड्यूस करता है, फॉर्मेशन ऑफ हीट, और जब भी हीट फॉर्म होती है ना तब भी उसमें से, उस मटेरियल में से हिजिंग एंड क्रैकिंग साउंड आपको सुनाई देगा। हिजिंग यानी कि जैसे कि स्नेक जैसे कि स्नेक आपके ऊपर अटैक करता है तब जैसी आवाज़ निकालती है उसको हम बोलते हैं हिसिंग साउंड। उसके ऊपर एक पिक्चर भी है ना, हिस, मल्लिका शेरावत का। तो हिसिंग का मतलब है ये फुसकारा मारता है। कौन? स्नेक मारता है। जब भी वो फुसकारा मारेगा स्नेक तो उसमें से हिजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन कब होगा? जब भी आपका लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, एक्सपांशन होगा। ठीक है। फैट लाइम हाइड्रेट, और यहाँ पे देखिए लाइम का भी प्रकार है। फैट लाइम इन द सेंस इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ लाइम हाइड्रेटेड इन 3 to 4 आवर्स। उसका हाइड्रेशन यानी स्लाइकिंग ऑफ लाइम, हाइड्रेशन जो रिएक्शन है उसका कंप्लीशन टाइम कितना है? 3 to 4 आवर्स है। एंड हाइड्रोलिक लाइम हाइड्रेट विद इन 1 to 3 days। हाइड्रोलिक अगर लाइम है तो वहाँ पे उसको स्लैकिंग के लिए कितना वक्त लगेगा? 1 to 3 days। सो ऑल लाइम्स मस्ट बी स्लैक बिफोर यूज इन अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लाइम का स्लैकिंग जरूरी है। ऑल लाइम शुड बी स्लैक, यानी कि हम ऐसा कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हमें स्लैक करना पड़ेगा और उससे हमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो ऐसा अगर होगा तभी क्या होगा कि तभी आपका जो मटेरियल बनेगा वो मटेरियल आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने वाले, दैट वन इज यूजफुल फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो सभी लाइम को स्लैकिंग की ज़रूरत होती है, और जब भी हम स्लैक करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, स्लैकिंग का मतलब होगा ये लाइम में हम पानी ऐड करें, वाटर ऐड करें, और उससे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड द स्लैकिंग ऑफ लाइम। जब भी हम स्लैकिंग करते हैं तो इवोल्यूशन होता है, एक्सपांशन होता है, हिसिंग एंड क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और सभी लाइन हम स्लैक करके लेते हैं और तभी हम क्या करते हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे जाएंगे। इस स्लैकिंग ऑफ लाइम, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आपको क्या करना है? आपको लाइम लेना है, लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, और उसमें आपको पानी डालना है। कब तक डालोगे? जब तक
वो कैल्शियम ऑक्साइड उस पानी को, वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करेगा और आपको ऐसा ही स्लरी मिलेगा या फिर मटेरियल मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लैकिंग ऑफ लाइम, या फिर उसका कन्वर्जन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लाइम। आगे जाएंगे, लाइम, ठीक है। सो हियर वी विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। हम यहाँ पे लाइम का क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। जैसे कि आपने पिछले सेंटेंस में पढ़ा होगा कि फैट लाइम भी होता है, ठीक है। सो लाइम इज अवेलेबल इन द मार्केट इन 3 मेन टाइप्स विच आर, तो मार्केट में अलग अलग टाइप के लाइम्स आपको मिलते हैं। मेनली मार्केट में आपको 3 तरह के लाइम्स मिलते हैं। पहला जो लाइम है उसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। सेकंड लाइम इज कॉल्ड एज द हाइड्रेटेड लाइम and the third lime is called as the hydraulic lime. So there are the 3 class of lime. The first class is called as the quick lime, the second one is called as the hydrated lime, and the last one is called as the hydraulic lime. ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम। तो आगे जाएंगे हम। तो पहले स्टडी करेंगे हम क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम बोलते हैं फैट लाइम या फिर रिच लाइम या फिर उसको हम बोलते हैं प्योर लाइम। फैट का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा फैट है, इसका मतलब उस लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे फैट लाइम या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं उसको। रिच का मतलब है कि कैल्शियम ऑक्साइड का परसेंटेज उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम प्योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्विक लाइम या फिर फैट लाइम, रिच लाइम और द प्योर लाइम, हम किसको बोलते हैं? इनेट कैल्शियम ऑक्साइड इज ग्रेटर देन 90% बाय वेट। उस लाइम में उसका टोटल जो वेट है वो 100% हम मान के चलते हैं, तो 100% में 93% क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है, तो बहुत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई फैट, रिच, प्योर एंड रिमेनिंग। मैंने पहले ही बता दिया है कि नाउ दिस लाइम इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? इट इज एसोसिएटेड विथ योर calcium, it is associated with the silica, it is associated with the alumina, it is associated with the iron oxide as well as the magnesium carbonate, means magnesium oxide. It is one of the impurity. So remaining material जो भी होगा 7%, it will be a magnesium oxide and very little amount of clay, उसमें clay भी होगा। तो इन सबको मिला के 93% आपका बन गया, आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके अलावा उसमें है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड लास्ट में है क्ले। इन सब को मिला के आपका बनता है फैट लाइम या फिर उसको हम बोलते हैं रिच लाइम, प्योर लाइम, ठीक है। नेक्स्ट वन, वीक लाइम इज ए अमॉर्फस शेपलेस white material. It has a very high affinity for water and carbon dioxide. देखिए, तो अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन, इसके ऊपर हमने पूरा लेक्चर लिया है लास्ट सेमेस्टर में। तो अमॉर्फस का मतलब क्या होता है आप जान लो, ठीक है। जैसे कि हमारा टाल्क पाउडर होता है, वैसे सिमिलरली आपका क्विक लाइम होता है, तो उसकी नेचर से हमें पता चलता है कि वो डेफिनेटली अमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन नहीं, ठीक है। सो इट हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी। जो क्विक लाइम होता है वो वाटर की तरफ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। जब भी वाटर दिखेगा, मिलेगा, रिएक्ट होगा, क्विक से क्या होगा? रिएक्शन होगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब अगर ये खुले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर अगर एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल मॉइस्चर है तो उसके साथ भी आपका क्विक लाइम बहुत ही जल्द रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसका एफिनिटी जो होता है, एफिनिटी टुवर्ड्स द मॉइस्चर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हाई। सो डेफिनेटली व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर it will absorb the moisture quickly, so that's why it is called as the quick lime. When it comes in contact with the moisture, it quickly absorbs the moisture from the atmosphere and converting itself to a carbonate of calcium. तो मान लो कि आपका क्या है, मान लीजिए कि आपका एक क्विक लाइम है, ठीक है।
अगर ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इसके साथ ये रिएक्ट करेगा और बन जाएगा स्लैकिंग ऑफ लाइम, दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो उससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। या फिर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो फिर क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। So this is the reaction of the quicklime. So just you have to simply remember that whenever quicklime react with carbon dioxide, it will form carbonate. Quicklime react with water, it will form calcium hydroxide, and calcium hydroxide react with the carbon dioxide, it will again form calcium carbonate plus water. So it's a quick reaction. So here is a quicklime process. Simple है. So here quicklime, it is a caustic white alkali with chemical name calcium oxide. ये आपको दिख रहा है ना, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। लाइमस्टोन हमें मिलता है, लाइमस्टोन को हम क्या करते हैं, उसका कैल्सिनेशन करते हैं तो लाइमस्टोन से हमें मिलता है लाइमस्टोन, उसको हम बोलते हैं चुनखड़ी। दैट वन इज अ नेचुरली प्रेजेंट ओके इन द अर्थ क्रस्ट। उसका कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन के बाद हमें मिल जाएगा क्विकलाइम, दैट इज कॉल्ड एज द कैल्शियम ऑक्साइड। इट्स अ कमर्शियल नेम, ओके। लाइम और कॉमन लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा, ठीक है। दूसरा जो टाइप है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड लाइम। So hydrated lime, it is that lime to which sufficient quantity of water has already been added at the or during the manufacturing stage to hydrate it completely. Hydrated का मतलब होता है, hydrated का मतलब ऐसा लाइम जिसके साथ ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड। जब भी हम लाइम को मैन्युफैक्चर करते हैं तभी हमें क्या करना पड़ता है कि उसको वाटर के साथ मिलाना पड़ता है और हाइड्रेटेड लाइम के फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है। सो हाइड्रेटेड लाइम इन द सेंस द लाइम विच कंटेन द वाटर मॉलिक्यूल और वाटर हैज ऑलरेडी बीन एडेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज ऑफ लाइम। इन कंपोजिशन it is a calcium hydroxide, no doubt, because it is already added with the water, so it will form calcium hydroxide in its structure. It is in powder form always, it comes in ready to use form compared to fat lime that has to be hydrated or slacked before using. Now see, hydrated lime is present in a powder form, it combines in ready to use form compared to fat lime that has to be hydrated or slacked before using. यानी कि उसको यूज करने से पहले हमें उसका हाइड्रेशन या फिर स्लैकिंग करना पड़ता है, यानी कि वाटर को ऐड करना पड़ता है। लाइम कैन आल्सो बी कन्वर्टेड to hydrated form at the place of construction. This method is called as the slacking of lime. तो हम लाइम को पहले स्लैक नहीं करेंगे, जब भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, now lime is converted into the hydrated form, that is called as the hydrated lime, by just adding a water at the place of construction where we are going to use that lime in the hydrated form for the construction purpose. Just you have to simply add the water into the lime doing the slacking of lime, that is called as the hydrated lime, ठीक। जो थर्ड टाइप है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लाइम। इट इज अ डिफरेंट इन केमिकल कंपोजिशन फ्रॉम फैट लाइम in that it contain a definite amount of clay in addition to calcium oxide. Clay content in a hydraulic lime may range from 10 to 30% by total weight. तो ये जो हाइड्रोलिक लाइम होता है, ये हाइड्रोलिक लाइम फैट, इफ यू जस्ट कंपेयर द फैट लाइम
अगर उसका केमिकल कंपोजिशन को हम कंपेयर करेंगे तो केमिकल कंपोजिशन फैट लाइम का अलग है और हाइड्रोलिक लाइम का अलग है। नो डाउट कि सब में कैल्शियम ऑक्साइड है, लेकिन जो क्ले का परसेंटेज है वो क्ले का परसेंटेज कम ज़्यादा रहता है। हाइड्रोलिक लाइम में जो क्ले का परसेंटेज हो वो 10 to 30% होता है बाय वेट ऑफ योर हाइड्रोलिक लाइम, जो कि फैट लाइम में आपका जो क्ले होता है वो क्ले कम होता है, इट इज़ लेस देन 2 or 3%. This clay plus lime composition gives the hydraulic lime a property of hydrolicity. So इसमें क्या है कि लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या है, क्ले, तो उससे बनता है आपका हाइड्रोलिक लाइम, और उससे उसको प्रॉपर्टी आ जाती है हाइड्रोलिसिटी। क्या आ जाती है? हाइड्रोलिसिटी। ये देखिए हाइड्रोलिक लाइम है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हो। हाइड्रोलिक लाइम इन द सेंस स्लैक लाइम, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोलिसिटी का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिसिटी द कैपेसिटी टू सेट एंड हार्ड इवन अंडर वाटर इन द एब्सेंस ऑफ एयर एज बिटवीन वेरी थिक वॉल। हाइड्रोलिसिटी का मतलब होता है कि द कैपेसिटी ऑफ दैट हाइड्रोलिक लाइम टू सेट एंड हार्ड इवन अंडर द वाटर। अगर पानी के अंदर भी हमें स्ट्रक्चर बिल्ड करना है, लाइम का इस्तेमाल करना है, तो भी ऐसा लाइम यानी कि हाइड्रोलिक लाइम जो कि सेट होता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है आपके मटेरियल को, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिटी। So the hydraulic lime is further classified into the 3 subtypes on the basis of hydraulicity of the lime. उसमें से पहला जो उसको हम बोलते हैं क्लास 1, उसको हम बोलते हैं इमिनिएंटली हाइड्रोलिक लाइम। क्लास बी को हम बोलते हैं मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। क्लास सी को हम बोलते हैं फीबली हाइड्रोलिक लाइम, एंड क्लास डी जिसको हम बोलते हैं रिच इन मैग्नीशियम। तो देखिए क्लास ए को हम बोलते हैं इमिनिएंटली हाइड्रोलिक लाइम, जिसमें क्ले कंटेंट होता है 21 to 30%। सी इमिनिएंटली हाइड्रोलिक लाइम मीन्स ऑल दिस हाइड्रोलिक लाइम्स दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्ले। इफ योर हाइड्रोलिक लाइम कंटेन 21 to 30% of clay in it along with the calcium oxide, then that type of the lime is called as the eminently hydraulic lime. And such a type of eminently hydraulic lime, that is a class A, set under the water within the 24 hours. सिर्फ 24 घंटा लगता है सेट होने में। क्लास बी किसको कहते हैं हम? क्लास बी और मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम इज द लाइम विच कंटेन द 11 to 20% of clay in addition to lime CaO, and such a type of the moderately hydraulic lime set under the water in about 7 days in a week. Class C, that is called as a feebly hydraulic lime, where the clay content is 5 to 10% along with calcium oxide, and such a type of lime set under the water within the month or more than 1 month. तो उसको सेट होने के लिए या फिर हार्ड होने के लिए कम से कम 1 महीना या फिर उससे ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर आपका क्लियर है तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर क्ले का परसेंटेज ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए क्ले का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है 21 to 30%, तो उसका सेटिंग टाइम कम होगा है 24 आवर्स। तो सेटिंग टाइम कम है तो इसका क्लास ए होगा। यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा, घट गया, तो सेकंड में क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज 11 to 20 है, 11 to 20 है, ठीक है, तो उसका परसेंटेज कम हो गया है, इसका मतलब सेटिंग टाइम बढ़ गया, तो उसको कितना लगता है, वीक लगता है, यानी कि 7 to 8 डेज लगता है, ठीक है। लास्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा क्ले का परसेंटेज कम हो गया है, तो अगर परसेंटेज कम हो गया इसका मतलब सेटिंग टाइम बढ़ गया, तो कितना 1 मंथ और मोर देन 1 मंथ लगता है, ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और क्लास डी में क्या होता है, दे आर रिच इन मैग्नीशियम, सुटेबल फॉर
finishing codes do not possesses हाइड्रोलिसिटी। क्लास डी एक्चुअली हाइड्रोलिसिटी का टाइप नहीं है, यह अलग है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो क्लास डी होता है उसमें मैग्नीशियम का जो परसेंटेज होता है, प्रमाण होता है, बहुत ज़्यादा होता है, रिच होता है। एंड सच टाइप ऑफ क्लास डी मटेरियल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट ओनली, एंड दैट विल नॉट possesses द हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी, सो दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा उसको क्लासीफाई किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इमीडिएटली हाइड्रोलिक लाइम, क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम, क्लास सी फैट लाइम, क्लास डी मैग्नीशियम डोलोमाइट लाइम, क्लास ई कंकर लाइम। ठीक है, और एक भी क्लास है जिसको हम बोलेंगे क्लास एफ, सिलिसियस डोलोमाइट लाइम। तो उसका यहाँ पे देखिए हर एक का यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है। तो यहाँ पे देखिए इट कैन बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर वर्किंग सच एज arches domes, can be used in constructing masonry, can be used for finishing coat in plastering, whitewashing, etc., or used for masonry mortars with addition of pozzolanic material, pozzolanic cement, can be used for finishing coats in plastering and whitewashing. Then next one here, produced by burning of lime nodules found in soil like black cotton soil containing silica, it can be used for masonry mortars. And class F, it is used for generally for undercoat and finishing coat. So this all these class A, this one is a class A, class B, like this. Okay, class A, B, C, D, E, F, like this. So this is the use of class A, class B, class C, D, class E, class F, etc. You have to just understand the concept of what classes and their applications. So I think here comparative study of fat lime and hydraulic lime, इसको हम कंपेयर करेंगे थोड़ा सा, और ऑलरेडी हमने कंपेयर किया है, फिर भी हम कंपेयर करके फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, फैट लाइम का कलर होता है वाइट और हाइड्रोलिक लाइम का जो कलर होता है ग्रेश वाइट, जो कि हमने देखा है। ठीक है, अभी कंपोजिशन देखा, कैल्शियम ऑक्साइड विथ सब ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ क्ले। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस के, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड विद 10 to 30% क्ले, 10 to 30%। तो यहाँ पे देखिए here it slacks vigorously, यहाँ पे देखिए it slacks vigorously, enough heat is liberated that create hissing and cracking sound in case of what, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं फैट लाइम को किसके साथ, हाइड्रोलिक लाइम के साथ। ओके, सो कंपेरेटिवली विगरस स्लैकिंग होता है, इनफ हीट प्रोड्यूस होता है, हिजिंग एंड क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इट एक्सपांड 2 to 3 times, स्लैकिंग टाइम इज 3 to 4 hours। In case of your hydraulic lime, it slacks gently, reaction ज़्यादा vigorous नहीं होता है, so does not produces the more amount of heat and hence no hissing sound. Expansion expands 1 to 2 times, slacking time is 24 hours to 48 hours. Setting के बारे में हम देखेंगे। In case of your fat lime, setting involves absorption of carbon dioxide from atmosphere resulting into the फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेटिंग होते समय ये जो फैट लाइम है, वो फैट लाइम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, कि जिससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। सो इट कैन नॉट बी सेट अंडर वाटर एज इट डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोलिसिटी। तो सच टाइप ऑफ फैट लाइम कैन नॉट बी यूज्ड अंडर द वाटर, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन जो आपका हाइड्रोलिक लाइम है, इट सेल्फ द नेम इंडिकेट दैट ये जो हाइड्रोलिक लाइम है, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी सेट अंडर द वाटर बिकॉज इट हैज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोलिसिटी। सो हैज़ ए डबल सेटिंग एक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम कंटेंट
may set as a fat lime, and clay forms hydrated aluminates and silicates of calcium similar to the cement. That is your cement on setting. Strength के बाद not very strong in case of your fat lime, not very strong in mortar, so may not be used where high strength binders are required. जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम फैट लाइम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रेंथ नहीं देते, हाइड्रोलिसिटिक प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास. लेकिन जो हाइड्रोलिक लाइम होते हैं क्वाइट स्ट्रॉन्ग mortar, so they can be used in foundation and walls in place of Portland cement. Portland cement के बराबर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जिससे जो भी मोटर का मतलब होता है कि आप सीमेंट लो, उसको रेती में मिला के, पानी मिला के, जो प्लास्टर के लिए हम मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं मोटर. तो सिर्फ रेती, सीमेंट और पानी. तो स्ट्रॉन्ग मोटर बनाता है कौन? हाइड्रोलिक लाइम. तो उससे फाउंडेशन अच्छा बनता है, और अगर हम प्लास्टर के लिए सच टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड, इट विल फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द मटेरियल्स एंड इट विल गिव्स ए strength to the materials. So in place of your Portland cement we can use the hydraulic lime for the better strength. Uses क्या होता है? तो जनरली आपका जो फैट लाइम है इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग. तो हमें वाइट कलर की ज़रूरत है, तो उसके लिए हम वाइट वॉशिंग फैट लाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं विथ वाटर. प्लास्टरिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं. मेकिंग मोटर्स यूज एज अ फ्लक्स इन ए इंडस्ट्री. तो हमने देखा है कि इन अ स्मेल्टिंग प्रोसेस हमने फ्लक्स का इस्तेमाल किया है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि फ्लक्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में. दैट इज़ फॉर मेटलर्जी. एंड फॉर सॉइल इम्प्रूवमेंट, तो हम जो भी लाइम है तो लाइम हमारे सॉइल में ऐड कर सकते हैं, ज़मीन में ऐड कर सकते हैं उसका फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए. हाइड्रोलिक लाइम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मोटर इन लोड बेरिंग कंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पे हम मोटर बना सकते हैं, उसका प्लास्टर का माल बना सकते हैं. लोड बेरिंग कंस्ट्रक्शन में हम उसका मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर अंडरग्राउंड एंड ओवरग्राउंड सुपर स्ट्रक्चर, अगर ऐसा स्ट्रक्चर जो पानी के नीचे है तो भी हम उसमें ये मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोलिक लाइम का. या फिर ज़मीन के ऊपर जो भी है, पानी के अंदर नहीं है, ज़मीन के ऊपर है, पानी का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो उसमें भी हम ऐसा मोटर जिसमें कि हाइड्रोलिक लाइम ऐड हो चुका है, ऐसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ कंपैरेटिव स्टडी. सो दिस वन is sufficient for today's lecture. Here the lime is over. In the next lecture we will start the refractory material. Till then, goodbye. Thank you.